Let's see how much you all can score. Comment down your score at the end of the video. And here's our question number 1. With reference to subcategorization of scheduled castes and scheduled tribes, consider the following statements. पहला statement कह रहा है The Supreme Court's 2024 judgment recognized that states can subcategorize communities with the existing SC/ST list for equitable distribution of reservation benefits. Second statement है subcategorization amounts to altering the presidential list of scheduled caste or scheduled tribes. And third statement is the judgment was delivered by a 7-judge bench. So इसका आंसर हमें बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा. So please pause and answer this question. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बस पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत हो जाएगा. अब चलिए देखते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, रिकॉग्नाइज किया था दैट देयर मस्ट बी अ सब कैटेगराइजेशन विद इन दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सो दैट द मोस्ट नीडेड वन शुड गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, है ना. सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन क्या है, ये सब कैटेगराइजेशन डज नॉट मीन दी अल्टरिंग द प्रेसिडेंशियल लिस्ट. ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट आता है वो उसको अल्टर नहीं करते हैं, हम सिर्फ सब कैटेगराइज कर देते हैं. एज इन द केस ऑफ ओबीसी में कैसे सब कैटेगराइजेशन करा गया है, तो सेम उसी तरीके से इसको सब कैटेगराइजेशन करने का बात होता है. एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू ही आया था. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि सब क्लासिफिकेशन को आप लोग नहीं ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इट इज एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल लिस्ट, राइट. So that's all for the first question. Now let's move on to the next one. Assertion है prolonged incarnation of an accused under the UAPA can in appropriate circumstances become a ground for constitutional courts to grant bail. Reason है the Supreme Court in Union of India versus K.A. Najib held that stringent bail provisions cannot justify indefinite detention where there is no reasonable likelihood of the trial concluding within a reasonable period. So क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो क्यों सही है देखते हैं. तो हमारा असर्शन जो है ये बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि even when stringent such statutory provision apply, prolonged incarnation can raise constitutional concerns. ठीक है, तो इस कुछ कंडीशंस में जहाँ पे है वो बेल ग्रांट करा जा सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, राइट. एंड रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि के नजीब केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था दैट स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस जो है ऑन बेल कैनॉट कंप्लीटली ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ पर्सनल liberty and speedy trial. Okay, and that correctly explains the assertion as well. So इसीलिए हमारा दोनों ही सही है and it is the correct explanation of A, right. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेंशन कुछ टेकअवेज है, जैसे कि stringent bail provisions are not an absolute license for indefinite incarnation, which is a point to remember. and article 21 और के नजीब केस जो है ये important है ना. So now let's move on to the next question. Consider the following statement regarding the electoral roll revision exercise discussed in relation to Telangana. पहला ऑप्शन है booth level officers are involved in the verification process. Second is electoral registration officers exercise quasi judicial function in deciding certain claims and objections. Third, an elector classified as unmapped is automatically disqualified from voting. And fourth is logical discrepancies in electoral form can require verification through prescribed processes. Correct बताने कितने statements correct है? Options है A, B, C, D. Your time starts now. Comment down your answers. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. कौन कौन से हैं वो 3 स्टेटमेंट्स? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है. पहला गलत है क्योंकि BLO इज द बूथ लेवल ऑफिसर हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ERO जो है वो एग्जामिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स ये सारे काम करता है. एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अनमैप्ड का मतलब है इट डज नॉट मीन दैट ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फ्रॉम वोटिंग, है ना. वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स रेलेवेंट होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फ्रॉम वोटिंग, राइट. इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है.
चौथा भी हमारा करेक्ट है क्योंकि लोकल डिस्क्रिपेंसीज कैन ट्रिगर द नीड फॉर वेरिफिकेशन अंडर प्रिस्क्राइब इलेक्टोरल रोल प्रोसेसेस। राइट, यहीं पे इंपॉर्टेंट अगर ट्रैप या कंफ्यूजन भी देखा जाए कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, तो अनमैप्ड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया वो ऑटोमेटिकली डिलीशन या डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है, हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं उसको उस चीज से, ठीक है। So now next question है, with reference to constitutional issues surrounding taxation of minerals bearing land, which one of the following statement is not correct, हमें बताना है। Option A है fiscal federalism concerns arise when changes in mineral taxation affects the autonomy of source rich states. Second option है an amendment to a central mining law automatically transfer all taxation powers over the land from states to the union. And third is land is primarily a state subject under the seventh schedule. And option D is the power of state to impose certain tax and cess is an issue in debates over mineral rich lands. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? The answer for this question will be option B, that is option B is incorrect क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा अमेंडमेंट सेंट्रल लॉ ऐसे अमेंड नहीं कर सकती है जिससे क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली सारे वो टैक्सेशन पावर्स स्टेट से सेंटर के पास पहुंच सकती है, मतलब सेंटर को मिल सकती है, राइट, तो द यूनियन ये ट्रांसफर नहीं करा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सेशन पावर्स क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न करा जाता है। सो इफ एनी चेंजेस वांट टू मेक वी हैव टू डू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, राइट। So now let's move on to the next one. With reference to extradition, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है एक्स्ट्राडिशन इज द फॉर्मल प्रोसेस थ्रू विच वन कंट्री रिक्वेस्ट अनदर कंट्री टू सरेंडर अ पर्सन अक्यूज्ड और कन्विक्टेड इन एन ऑफेंस। सेकंड स्टेटमेंट है एक्स्ट्राडिशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिपोर्टेशन as extradition is generally based on a legal request and applicable treaty or domestic law framework. Third है the existence of an extradition treaty means that the requested country is legally bound to surrender the person in every case. करेक्ट आंसर बताना है क्या क्या हमारा जो स्टेटमेंट से तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि एक्सट्रेडिशन जो है एक ये फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि विच वन स्टेट सिक्स द सरेंडर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अनदर स्टेट फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि एक्सट्रेडिशन और डिपोर्टेशन जो है ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक्सट्रेडिशन इज अ फॉर्म ऑफ डिपोर्टेशन बोला जा सकता है ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, बट दिस बोथ ऑफ द थिंग्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एंड थर्ड हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड यूज करा गया था कि एवरी केस में ऐसा जरूरी है कि वो लीगली बाउंड हो स्टेट उसको फॉलो करने के लिए, राइट। तो बट ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है क्योंकि ऐसा क्लॉज जब ये ट्रीटी साइन करा जाता है तो उसमें कुछ क्लॉज मेंशन करे जाते हैं जिसमें कि क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, दे कैन रिफ्यूज, दे हैव द राइट टू रिफ्यूज, ठीक है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, राइट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए जैसे कि एक्सट्रेडिशन इज नॉट इक्वल टू डिपोर्टेशन, ट्रीटी डज नॉट मीन ऑटोमेटिक सरेंडर, है ना, और एक्सट्रेडिशन एज लीगल कंडीशंस एंड एक्सेप्शंस, और कुछ जो मेंबर कंट्रीज है जिसके साथ हम ट्रीटी साइन करते हैं दे हैव द राइट टू रिफ्यूज इन सर्टेन केसेस एज वेल, राइट। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट रिप्रेजेंट्स अ चार्ज एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग certain digital payment transactions. Second, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 enables the government to allow MDR on UPI and RuPay debit card transactions. Third, the imposition of MDR necessarily means that consumer rather than merchants must directly pay the charge. करेक्ट बताना है हमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बस पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। अब देखते हैं क्यों गलत है तीसरा स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि एमडीआर जो है ये एक चार्ज है, सर्टेन प्रोसेसिंग फी है जो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर चार्ज करा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि द इशू कंसर्न्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउिंग एमडीआर ऑन यूपीआई एंड रुपे डेबिट कार्ड्स ट्रांजैक्शन थ्रू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डिस्कस इन द करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट। जो अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली सेंटर ने एक बिल पास किया जिससे कि यूपीआई पे फी चार्ज करा जा सकता है, राइट। सो इट इज रिलेटेड टू दैट इटसेल्फ। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि एमडीआर जो है ये कंज्यूमर के ऊपर चार्ज नहीं करा जाता है, कंज्यूमर पे नहीं करता है चार्जेस, इट इज मर्चेंट हु इज चार्ज, ठीक है।
कौन पे करता है एमडीआर? मर्चेंट पे करता है, ना कि कंज्यूमर्स। सो ये पॉइंट को याद रखेंगे हम लोग कि एमडीआर जो है वो मर्चेंट के ऊपर चार्ज करा जाता है, ना कि कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि ये एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है पॉइंट, है ना। कुछ की इंपॉर्टेंट टेकअवेज है, जैसे कि आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, एमडीआर किसके ऊपर चार्ज करा जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा मर्चेंट के ऊपर चार्ज करा जाता है ना। सो राइट, सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन इंडिया मिशन। पहला स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड है, इट सीक्स टू improve forest and tree cover as well as ecosystem services. Third है, it is concerned only with increasing the geographical area under forest and has no livelihood component. And fourth statement is its objective includes enhancement of carbon sequestration. करेक्ट हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। सो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये इट फॉल्स अंडर द मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये मिशन 2014 में लॉन्च करा गया था, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल भी सही है, द मिशन एम्स टू एनहांस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें मेंशन करा गया था कि 5 मिलियन हेक्टर ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को इम्प्रूव करा जाएगा, प्लस 5 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट एंड ट्री क्वालिटी को भी इम्प्रूव करा जाएगा, राइट। बट रिसेंट कैग का जो ऑडिट हुआ था उसमें बहुत सारा शॉर्टफॉल्स देखा गया था, जिसमें कि 97.5% शॉर्टफॉल देखा गया था फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। जो बोला गया था कि 5 मिलियन हेक्टर ट्री कवर इंक्रीज करा गया था, तो उसमें 97.5% शॉर्टफॉल है, और जो फॉरेस्ट एंड ट्री क्वालिटी है उसमें 91.91% के आसपास आपका ये भी शॉर्टफॉल है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस वाज इन द न्यूज़। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी गलत है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये मिशन सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं करता है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से, इट ऑल्सो हैज द डायमेंशंस इन्वॉल्विंग इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड एज वेल। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, है ना। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस कर लिया, इसका शॉर्टफॉल भी अभी देखा कि कितना परसेंट शॉर्टफॉल है एज कम्पेयर टू जो बातें करी गई थी, राइट। So now let's move on to the next one. An investor accepts a slightly lower yield on a government security because the proceeds are earmarked for environmentally sustainable projects. Which concepts most directly describes the resulting yield differential? ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है वो yield differential कौन सा है, क्या है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्रीनियम। ग्रीनियम हम कहते हैं उसको जिसमें कि इन्वेस्टर एक्सेप्ट करता है और लोअर yield एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो मार्केट में yield मिलता है उस कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ प्रोसीड्स के लिए वो अग्री कर लेता है, राइट। सो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड डज नॉट इज इक्वल टू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब ग्रीन बॉन्ड जो है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज करा जाता है। सो वी मस्ट बी क्लियर यार, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन बॉन्ड जो है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे बोल के पूछा जा सकता है, राइट। दैट विल बी इनकरेक्ट। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट इशू ग्रीन डेब्ट, है ना। ग्रीनियम पॉसिबली yield advantage for issuers, right? So these are कुछ important points that we must remember. So now our next question is, with reference to recent audit of passenger amenities in Indian Railway, consider the following statements. पहला statement है, the audit was conducted jointly by CAG and railway officials. Second है, the audit covered 512 railway stations. So the statement number 3 is, Amrit Bharat scheme was launched in 2022 to modernize railway stations. And statement number 4 क्या कह रहा है? The audit found that all stations under the Amrit Bharat station scheme meet the minimum essential amenity standards. So इसका हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चारों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बताना है। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट जो है ये सही है, क्योंकि अभी कैग ने रिसेंटली रेलवे अथॉरिटीज के साथ मिलकर ऑडिट करा है ना। सो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि टोटल 512 रेलवे स्टेशन कवर करे गए हैं, और एग्जाम में ऐसे आपका पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपका यहाँ जो नंबर है 512 इसको ट्विस्ट करा जा सकता है, कोई और नंबर देके फिर स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, जो कि हमें ये नंबर 512 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर उस पर्सपेक्टिव से।
थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि अमृत भारत स्टेशन जो है ये मॉडर्नाइजिंग एंड अपग्रेडिंग रेलवे स्टेशन के लिए लाया गया था। एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑल स्टेशन बोला था, राइट, जो कि एकदम गलत है क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक स्टेशन एकदम पॉसिबल जो हमने गाइडलाइंस इशू किया है उस गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड हो, पूरा टोटली उस फॉलो करे, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डिड नॉट फाइंड यूनिवर्सल कंप्लायंस, ठीक है, सारे जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है उसके अंडर कंप्लायंस जो है वो सारे स्टेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा पाया गया है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Disaster assertion and disaster management increasingly emphasizes resilience and recovery in addition immediate relief. In addition to immediate relief and reason, disaster resilience involves the capacity of communities and infrastructure to withstand, adapt to, and recover from hazards. बताना है हमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो असर्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये बियॉन्ड सिर्फ क्या करता है, इमीडिएट रिलीफ के अलावा भी इट मूव्स टुवर्ड्स प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रेजिलियंस एंड रिकवरी पे भी फोकस करता है। एंड हमारा जो रीजन है वो भी करेक्ट है क्योंकि रेजिलियंस refers to the ability to withstand, adapt to and recover from hazards, right? So correct उसको explain किया है हमारा assertion को, that's why both are correct and it is the correct explanation of the assertion. So now let's move on to the next question. Consider the following statements. NASA's proposed moon base is planned near the moon's south pole. Second statement है, permanently shadowed lunar crater are of scientific interest partly because they can contain water ice. And third statement है, India is not a participant in the Artemis Accord. Correct बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने कितना ने भी इसका करेक्ट आंसर भी करा होगा, है ना, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है ये गलत है क्योंकि इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड का मेंबर है और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था आर्टेमिस अकॉर्ड को, तो 2023 में ज्वाइन किया था, है ना, 2023 में इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया था, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि नासा लूनर साउथ पोल पे जो है मून का वहाँ पे अपना बेस बनाने का प्लान कर रहा है, राइट, एंड इंडिया को भी अभी इनवाइट किया है मून बेस प्लान के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि साउथ पोल जो शैडोड रीजन है वहाँ पे आइस जो वाटर है उसका पॉसिबिलिटी है, ऐसे बहुत टाइम टू टाइम हमें साइंटिफिक न्यूज़ के थ्रू भी पता चला है, राइट, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड गलत है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया क्यों गलत है थर्ड स्टेटमेंट, है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें मैच करना है यहाँ पे कौन सा पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं है बताना है, राइट। सो पहला पेयर है कॉस्मिक डॉन, अर्ली पीरियड ऑफ द यूनिवर्स व्हेन द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी इमर्ज्ड। दूसरा है सुपर मैसिव ब्लैक होल विद मास मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम दैट ऑफ सन। एंड थर्ड है वेब टेलीस्कोप जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, प्राइमरीली और रेडियो टेलीस्कोप डिजाइन टू मैप अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बताना है कितने पेयर्स करेक्ट है इसमें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बस पहला दूसरा पेयर ही करेक्टली मैच है, तीसरा पेयर हमारा गलत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट या पहला पेयर जो हमारा एकदम करेक्ट है क्योंकि कॉस्मिक डॉन्स जो है ये रेफर करता है टू द अर्ली पीरियड ऑफ फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी, कैसे इमर्ज्ड हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, उसके बारे में बात करता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सेकंड पेयर भी करेक्टली मैच है क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो होते हैं ये मिलियंस टू बिलियंस ऑफ जो सोलर मासेस है उससे ज़्यादा होते हैं, उससे ज़्यादा रेंज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पेयर इनकरेक्ट है क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो रेडियो टेलीस्कोप ना होके ये इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। रेडियो टेलीस्कोप ना होके क्या है, इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, इसीलिए थर्ड पेयर इनकरेक्टली मैच था, है ना। और यही कंफ्यूज करा गया था आपको कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को क्या बताया गया था, रेडियो टेलीस्कोप, जो कि गलत हो जाता है, यहाँ पे इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द साइटेड स्टडी estimated India's 2025 cost of spending 1 kilogram to low Earth orbit to be higher than that of US, China, and Europe. Second, one explanation offered for India's higher cost is that ISRO flies relatively small rockets, spreading fixed launch cost over less payloads. Third, India has no private orbital launch capability. And fourth, InSpace was established to facilitate and regulate private sector participation in India's space sector.
यहाँ पे हमें क्या है, करेक्ट बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स चारों में से करेक्ट हो जाएगा. सो प्लीज पार्टिसिपेट, आंसर द क्वेश्चन. So the correct answer is option C. That is only 3 statements are correct here. So पहला statement हमारा correct है, second correct है, fourth correct है, third यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे थर्ड में क्या मेंशन करेगा कि इंडिया हैज़ नो प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी, जो कि गलत स्टेटमेंट है. अभी हमने न्यूज़ में भी देखा था कि स्काई रूट जो एरोस्पेस है उसने अभी अपना खुद का प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट लॉन्च किया था, राइट. सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है क्योंकि हमारा जो इंडिया का इसरो का जो कॉस्ट पर किलोग्राम लॉन्च करने का जो कॉस्ट आता है लो अर्थ ऑर्बिट में, वो हायर है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज. अब क्यों हमारा ये हायर कॉस्ट आता है, क्योंकि हमारा जो पेलोड रहता है वो मतलब कभी ज़्यादा रहता है कम रहता है, बट जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है वो तो फिक्स्ड है ना. हमारा जो लॉन्च व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उसका वो हम सेम यूज़ करते हैं फॉर द हायर, एंड जो कम पेलोड है उसमें भी हम यूज़ करते हैं. दैट्स व्हाई द कॉस्ट इंक्रीजेस, है ना. थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो केपेबल है. अभी स्काई रूट का भी एग्जांपल हमने देखा कि कैसे दे हैव अचीव्ड द लॉन्च, है ना. प्राइवेटली सेक्टर कैसे लॉन्च किया है अभी रिसेंटली इन लो अर्थ ऑर्बिट. एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि सही है क्योंकि इन स्पेस जो है ये स्टैब्लिश करा गया था टू प्रमोट एनेबल एंड फैसिलिटेट ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम. ठीक है, यहाँ पे ये अज्यूम करना गलत हो जाएगा कि इसरो ही जो है वो एंटायर इंडियन स्पेस सेक्टर को कवर करता है. गलत हो जाएगा ये अज्यूम करना टोटली, है ना, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर भी इमर्ज हो रहे हैं बहुत तेजी से, राइट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू ट्रायल्स कंडक्टेड इन एब्सेंटिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताना है. ऑप्शन ए है अ कन्विक्शन इज इन एब्सेंटिया ऑटोमेटिकली गारंटीज that the sentence can be enforced if the accused is outside the country. Second, the accused is not physically present during the trial proceedings. And third, questions of fair trial guarantee becomes particularly significant in such proceedings. Fourth option, extradition may become relevant when a convicted person is located in another country. करेक्ट हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्या कंज्यूम कर लेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट. बट क्वेश्चन भी हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, राइट. क्योंकि ये बहुत बार हम जेन्युइनली ऐसे लेके चलते हैं कि करेक्ट ही पूछा होगा, राइट. सो दैट्स नॉट द केस इन ऑल द क्वेश्चंस. वी हैव टू स्टडी द क्वेश्चन आल्सो कि एक्चुअली पूछा क्या है क्वेश्चन में, है ना. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए जो हमारा ये इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली गारंटी नहीं करता है एनफोर्समेंट का. ठीक है, इट डज नॉट गारंटी ऑटोमेटिकली. ठीक है, अगर कोई कन्विक्ट जो है पर्सन जो है वो अब्रॉड है तो एनफोर्समेंट में एडिशनल लीगल एंड इंटरनेशनल मैकेनिज्म को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, सो हमारा पहला ऑप्शन ही गलत था, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन यूएलए मॉडल अंडर पीएम सूर्य घर. पहला स्टेटमेंट है द यूएलए मॉडल कैन हेल्प द स्टेट्स रिड्यूस द recurring fiscal burden associated with subsidized daytime electricity. Second statement है under the ULA model states can incur one-time capital expenditure to install rooftop solar systems. And third statement है the ULA model can replace part of the recurring expenditure on subsidized daytime electricity with expenditure on rooftop solar infrastructure. So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट 2 एंड 3. ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई all of the above statements are correct and statement 2 and 3 explains statement 1. सो स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट है क्योंकि यूएलए मॉडल जो है ये स्टेट्स का जो रिकरिंग फिस्कल बर्डन है उसको एड्रेस करने के लिए हेल्प करता है. सेकंड स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट है क्योंकि द मॉडल involves the possibility of one-time capital expenditure for rooftop solar installations के लिए one-time capital expenditure दिया जाता है ना. थर्ड भी हमारा करेक्ट है क्योंकि it can shift part of the expenditure from recurring subsidy cost towards rooftop solar infrastructure. ठीक है, and it correctly explains the first statement. ULA model basically क्या है, ULA model seeks to use rooftop solar as a means of reducing the recurring burden. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रैप यहाँ पे सेटअप करा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकरिंग सब्सिडी के साथ आपको कंफ्यूज करा जा सके, है ना. सो वी हैव टू बी वेरी
केयरफुल वाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि पीएम सूर्य घर क्या है, ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम से रिलेटेड, नॉट अ बैटरी सब्सिडी स्कीम, ठीक है, इससे भी कंफ्यूज करा जा सकता है आपको, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएं हमें कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।